Good morning, Dheerji. How are you doing? Good morning, sir. I'm good. How are you? I'm perfectly fine. Thank you. So I got your message that today you are a little occupied, so you would be leaving a bit early. Is that so? Yes, sir. Okay, not a problem at all. But then, as I mentioned in the message, that we will listen from your side, your share of presentation on the topic, why hobbies are important. Are you ready with that? Sorry, I'm not ready today. You're not ready today. Okay. First, please teach us, sir. Then continue debate. Yes, absolutely. Even the debate is a kind of exchange, so that also helps us to, strengthen our understanding. So I'll just quickly greet Neelamji. Good morning, Neelamji. How are you doing? Ecstatic, sir. Great. I just love this word. When you say I'm ecstatic, so that's great. So I was just talking to Dheerji. So she says that we'll quickly move ahead with some new topic today. Of course, I have something in my mind, but at the same time, I'll just let Deepmala ji join. Okay. Yeah. So I'll just quickly greet her once, and then we'll get going. Right. So the topic that we are going to move ahead with today is going to be modal verbs. I could you just help me? Did we already start modal verbs? धीर जी हमने चालू कर दिया था modal verbs पे काम करना बात करना. Did we start? Which was the modal verb that we saw? Did we already start? No, sir. हमने चालू किया था नीलम जी modal verbs पे चर्चा बात करना. No, No, sir. not tag question था, right? Tag. Right. हाँ, tag question में हमने can देखा था. Right. You're right. Okay. I'll just quickly greet Deepmala ji. Good morning, Deepmala ji. How are you doing? Good morning, sir. I'm very good, and you? I'm very good too. Thank you. See, when I see students, friends coming in and joining, it really enthuses me. It really gives me energy and it makes me feel powerful so that I can transmit that energy to you. So, we'll quickly move ahead now. So, the topic that we're going to work upon is modal verbs. Okay, so modal verbs. Any idea about modal verbs? Anyone? What do you think should modal verb mean? Any guesses that you have? Any idea? Yeah, can. Very good. What else? Should. Should, right? Anything else? All right, that's correct. So we have got can and could and what else did you say? Will, would, Would, shall, should, shall, should. Furthermore, any more? May, might, must, have to, ought to, Need not. need not, need not, need not. Okay. All right. So these are some of the modal verbs. I'll just let Neelam ji in. There's Neelam. Okay. Right. So these are called modal verbs. Now, what is the purpose of modal verbs and why are they used in English? We'll talk about that. We won't be able to cover all the modal verbs, but we'll try to look at some important modal verbs that bother us a lot, and we have to really understand how they operate. I can see Neelam ji. Neelam ji, good morning. How are you doing? Great, sir. Great. Okay. Yesterday you couldn't join. Everything is okay? Yes, sir. Okay, all well. So I asked her a question. Sorry? Okay, there was a puja at your place, so you were busy with that. Okay, perfect, not a problem. All right, so we'll quickly move ahead. Now, these are called modal verbs. Modal verbs are can, could, will, would, shall, should, may, might, must, have to, ought to, and as Neelam ji mentioned about need to. So these are the modal verbs. Now, what do these modal verbs do? What is their purpose? So their purpose is to give a direction, right? An approach to our sentence. When you say I sing, it means मैं गाता हूँ, मैं गाती हूँ. But when you say I can sing, what does that mean, anyone? What does that mean? I can sing. मैं गा सकती हूँ, मैं गा सकता हूँ, right? तो आप अपनी possibility, अपनी ability दर्शाते हैं. So with these kind of modal verbs, we give a direction to our verb, to our sentence, which means that I can do it, I could do it,
I will do it, I would do it, I shall do it, I should do it, I may do it, I might do it, I must do it, I have to do it, I ought to do it, I need not do it, right? So एक हमने to do पकड़ा, उसमें हमने सारे modal verbs fit करके देखे और हमने देखा उसका क्या सेंस निकल के आता है। इन सभी मॉडल वर्ब्स में एक मॉडल वर्ब जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है वो मैं आपको आज सिखाना चाहूंगा, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम विद आवर क्लासेस, सो आई विल नॉट बी एबल टू डेल्व इनटू ऑल द मॉडल वर्ब्स। आज हम चर्चा करेंगे कुड पे, सिर्फ कुड पे ध्यान देंगे, बिकॉज बाकी आई थिंक लार्जली आपको समझ में आते हैं। आई कैन स्पीक, आई कैन नॉट स्पीक, कैन यू स्पीक, कैन आपको आता है। विल फ्यूचर टेंस है, आई विल डांस, आई विल नॉट डांस, विल आई डांस, विल आई नॉट डांस या फिर वोंट आई डांस, ये भी हमको मोटा मोटा हमने देख रखा है। तो हम एक काम करते हैं, आज वुड और कुड पे काम करते हैं, प्रायोरिटी पे कुड रखते हैं, अगर समय बचेगा तो वुड पे जाएंगे, अन्यथा कल की जो हमारी क्लास है उसमें हम वुड पे चर्चा करेंगे। और वुड के लिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि शुरुआत वाले दिनों में अगर आपको याद है आपने कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाए थे, इफ यू स्पोक टू मी आई वुड हेल्प यू, याद है आप सभी को? इफ यू स्पोक टू मी आई वुड हेल्प यू, दीज वर द सेंटेंसेस जिसमें हम चर्चा करेंगे जब हम वुड को टेकअप करेंगे। फॉर द मोमेंट वी कैन पुट इट ऑन होल्ड। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुड जो हमारा है वर्ड उस पर हम चर्चा करते हैं। सो आई थिंक आई हैव टू इंसर्ट इट ओवर हियर, राइट? सो वील टेक द COULD, कुड। ऑलराइट, अब देखिए कुड के कहां कहां यूजेस होते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार। पहला होता है पास्ट एबिलिटी, आप पहले क्या कर पाते थे, क्या कर सकते थे, राइट? उस केस में हमको कुड काम में लेना पड़ता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बिकॉज इट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। आई थिंक धीरजी विल हैव टू लीव इन सम टाइम, सो आई विल ट्राई टू रैप इट अप बिफोर शी लीव्स बाय 11:30. वांट टू लीव धीरजी? यू स्टिल हैव 22 minutes, राइट? सो वील ट्राई टू वर्क ऑन दिस टॉपिक बाय देन, एंड एनी विच वे आप रिकॉर्डेड वीडियो को सुन सकते हैं। सो कुड आता है पास्ट एबिलिटी, मैं क्या कर सकता था, क्या कर पाता था। सो व्हेन आई वाज younger I could swim। चलिए आप ट्राई कीजिए नीलम जी, नीलम राठौर जी, इसका क्या मतलब हो सकता है इस वाक्य का? When I was younger I could swim। जब मैं छोटा था तो मैं स्विम कर सकता था। Absolutely, exactly, जब मैं छोटा था तो मैं तैर सकता था, तैर पाता था। ठीक है, ये कर पाने की आप कंडीशन बताते हैं, I could swim। Okay, so as a kid I could ओके धीर जी आप इसको पढ़िए और इसका मीनिंग बताइए। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं 3 घंटे तक डांस कर सकता था। हाँ राइट, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए आप इसको धीर जी। As a kid, I could dance for 3 hours continuously. Absolutely, as a kid मतलब एक बच्चे की कैपेसिटी में, उसकी क्षमता में, किड के रूप में मैं क्या कर सकता था? I could dance for 3 hours continuously, मैं 3 घंटे तक लगातार डांस कर सकता था, डांस कर पाता था। तो क्या ये हो भी पाता था या नहीं होता था? ये सिचुएशन होती थी या नहीं होती थी पास्ट में? होती थी, ठीक है। क्योंकि आप जब ये बात बोलते हैं ना दीपमाला जी, मैं जब छोटी थी तो मैं गाना गा सकती थी, तो एक ये विचार भी दिमाग में आता है, इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग, कि गा सकती थी पर मैंने गाया नहीं। तो ये वो वाली सिचुएशन नहीं है। दीपमाला जी समझ में आ रहा है आपको? मतलब गा सकती थी और गा पाती थी और गाती भी थी, ये है इसका सेंस। मतलब ये रिग्रेट नहीं है, ये किसी प्रकार का पछतावा नहीं है। क्योंकि हिंदी में आप यही बोलते हैं नीलम जी, जब मैं छोटी थी तो मैं स्विमिंग कर सकती थी। तो कर सकती थी का मतलब ये नहीं कि ओ काश मैंने कर ली होती, मैं क्यों नहीं कर सकी, यू नो, इट्स नॉट दैट। आई होप इट्स क्लियर टू यू। क्लियर है सभी को? ये पास्ट के अंदर एक एबिलिटी है जो आप कर सकते थे और आपने करी भी, दैट्स इट। ओके, फटाफट से एक दो सेंटेंसेस सुनते हैं आप लोग उससे। बताइए नीलम जी फ्रॉम जलगांव, कोई वाक्य बताइए, क्या आप कर सकते थे पहले? एनीवन कोई भी ट्राई कीजिए, बताइए। As a kid, I could
मिस्चिफ, बदमाशी, उछल कूद, नटखट। Yes, sir. तो आप क्या बनाना चाहेंगे, इसका वाक्य कैसे बनेगा नीलम जी? मैं बदमाशियां, छोटी मोटी गड़बड़ें किया कर पाती थी, या क्या क्या सेंस क्या निकल गया? मतलब आप वाक्य को हिंदी में एक बार बोलिए। Yes, sir. जैसे कि जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था. हाँ, अब सुनिए, जब मैं छोटा बच्चा था तब बड़ी शरारत करता था is absolutely past tense, but it is not with could. could नहीं है, वो could उसकी काबिलियत, ability, वो तो करता था ना, कर पाता था, कर पाता था, कर सकता था। तो थोड़ा सा इसको, तो मैं आपने जो कहा मैं इसको लिखता हूँ, एज अ किड आई कुड डू lot of you know mischievous mischievous acts, mischievous activities. Okay, so as a kid I could do lot of mischievous activities, right? मैं बहुत सारी mischievous activities किया, मतलब कर सकता था और करता भी था, कर सकता था और करता भी था। आप कहीं पे भी इसका वो भाव मत निकालिएगा कि मैं कर तो सकता था पर मैंने करी नहीं, ये सेंस नहीं है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। दीपाला जी समझ में आ रहा है आपको? एक और सेंटेंस दीजिए फटाफट से। I have someone else. As a kid, I could dance fast. As a kid, I could dance fast. as a kid I could dance fast. As a kid I could dance fast. ठीक है, यानी एक बच्चे के रूप में, या मैं जब छोटी थी या बच्ची थी जब मैं, तो आई कुड डांस फास्ट, मैं बहुत तेज तेज डांस कर सकती थी, डांस कर पाती थी, पर अब संभव नहीं है। इन सभी सिचुएशन में अब संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल एनी मोर। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? क्लियर है सभी को? आई कैन सी आई थिंक गुरप्रीत जी हैज ज्वाइंड। या गुरप्रीत जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग? I'm good, sir. Good Perfect. morning. All right, great. So we are working on the modal verb could. You can catch hold of the video if you are missing on certain things. But let's carry on from this point. तो हमने पहला देखा could का होता है past ability. आप क्या कर सकते थे? कोई एक फटाफट से सेंटेंस दीजिए, दीपमाला जी, नीलम जी, anyone else quickly. क्या कर सकते थे, क्या कर पाते थे? As a kid, दीपाला जी का सुन लेते हैं पहले, फिर नीलम जी आपको सुनेंगे। या बताइए दीपाला जी। as a kid, I could lift more weight. Okay, all right. As a kid, I could lift I could a lot of weight, a lot of weight. Right. So जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत वजन उठा पाती थी, उठा सकती थी, ठीक है? और उठाती भी थी। क्लियर है सभी को? Anyone else who would want to try one? When I was I studied more than 6 hours. Very good. When I was a student, जब मैं छात्रा हुआ करती थी, I could study. क्या बोला आपने आगे नीलम जी? I could study More than 6 hours. for more than 6 hours. For more than 6 hours at a go. At a go. एक साथ चलिए थोड़ा उसको और वजन देते हैं। सो एज अ स्टूडेंट, और व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई कुड स्टडी फॉर मोर देन 6 आवर्स एट अ गो। एक बार में जब बैठती थी तो 6 घंटे तो नॉन स्टॉप में पढ़ती ही रहती थी। तो इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा, कुछ हद तक मैं देता हूँ। जब मैं छात्रा थी तब मैं 6 घंटे से भी ज्यादा लगातार पढ़ती थी, नहीं पढ़ती नहीं थी, पढ़ पाती थी, पढ़ सकती थी। राइट? पाना और सकना जो शब्द है वो कैन होते हैं हिंदी में, आपको समझ में आता है, ठीक है? तो इसलिए हमें उसका प्रयोग करना पड़ेगा ताकि हम उसको और क्लैरिटी दें। यहां तक बताइए, सभी को समझ में आ रहा है? सो एक मेरा प्रश्न है, इसका क्या मतलब होगा जब मैंने किसी से पूछा व्हेन यू वर इन अमेरिका, व्हेन यू वर इन अमेरिका कुड यू स्पीक इंग्लिश ओवर देयर? व्हेन यू वर इन अमेरिका कुड यू स्पीक इंग्लिश ओवर देयर? क्या मतलब है इस प्रश्न का? आप अमेरिका में थे, आपके वहाँ इंग्लिश बोल पाते थे या बोल सकते थे? वेरी गुड। जब आप अमेरिका में थे तो वहां पे आपके अंग्रेजी बोल पाते थे, बोल सकते थे, दैट शोज अ लेंथ।
इसका जवाब दीजिए एनीवन, रेज योर हैंड। हाँ, जब मैं अमेरिका में थी तब मैं अंग्रेजी बोल पाती थी। बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहा हूँ। तो क्या इंडिया में आके फिर मैं हिंदी बोलती हूँ ज्यादा तो इंग्लिश छूट गई, तो सेंस वो है। सो तब तो बोल पाती थी, पर अब वो कंटिन्यूटी नहीं है। तो क्या बोल पाएंगे एनीवन? When I was in America, I could speak English Fluently. fluent. Perfect, absolutely. So when I was in America, I could speak English fluently, but now, after having returned to India, I've lost my practice, I've lost touch with this language. जो भी बात है, right? तो बात का सार इतना सा है कि ये पास्ट में हो पाता था, होता था, हो सकता था, पर अब इसमें परिवर्तन है। क्लियर है सभी को कुड का सेंस? ओके, ये हो गया पास्ट एबिलिटी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैसे मैं ट्राई करता हूँ यहीं पे आपको सिखा दूं इसमें। ओके, अब एक है पोलाइटनेस। पोलाइटनेस के लिए भी कुड काम में लेते हैं हम, ठीक है? ये पास्ट में नहीं, जैसे कुड यू हेल्प मी प्लीज। क्या मतलब है इस प्रश्न का एनीवन? कुड यू हेल्प मी प्लीज? मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो हिंदी में तो देखिए कैन और कुड दोनों क्या हो जाते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी में पोलाइटनेस के लिए आपको ध्यान रखना, आपको कुड करके प्रश्न बोलना है, कुड यू प्लीज हेल्प मी। एंड यू शुड ऑलवेज अवॉइड यूजिंग कैन यू प्लीज हेल्प मी, बिकॉज कैन को हम थोड़ा इनफॉर्मल मानते हैं। कैन जो है वो हम यूज कर सकते हैं हमारे मित्रों के साथ इनफॉर्मल कंडीशंस में, बट इन अ फॉर्मल कंडीशन यूड ऑलवेज यूज कुड यू प्लीज हेल्प मी, राइट? सो कुड यू रिपीट सर? Want और would वाली कंडीशन हो गई क्या? वांट और वुड वाली, एब्सोल्युटली। जिस प्रकार से वांट और वुड आप कोई चीज चाहते हैं तो उसमें पोलाइटनेस दर्शाने के लिए आप वुड यूज करते हैं, और उसको एकदम डायरेक्ट रखने के लिए आप वांट यूज करते हैं। इसी प्रकार से कैन और कुड यहाँ पे हो जाता है, सेम है, राइट? ओके, सो ये पोलाइटनेस वाला तो आपको समझ में आता है, राइट? कुड से हम प्रश्न बनाते हैं। ये आप कैसे बोलेंगे? नीलम जी फ्रॉम जलगांव, क्या मैं सुनीता से बात कर सकती हूँ? क्या मैं सुनीता से बात कर सकती हूँ? फोन पे है। Could I speak to Sunita, please? Perfect. Could I speak to Sunita, please? Could I talk to Sunita, please? Yeah, perfect. तो could, not can. Okay. आपको बोलना है धीर जी, क्या आप मुझे ये पता बता सकते हैं? आप किसी राह चलते किसी व्यक्ति को रोक के पूछ रहे हैं, आप मुझे पता बता सकते हैं Could you tell me this address, प्लीज? please? ये तो साझा हुआ, एब्सोल्युटली। एक्सक्यूज मी, कुड यू टेल मी दिस एड्रेस प्लीज? कुड यू एक्सप्लेन मी दिस एड्रेस प्लीज? जो भी आपकी बात है, राइट? दीपाला जी आप ट्राई कीजिए। क्या आप एक बार फिर से दोहरा सकते हैं? परफेक्ट। कुड यू रिपीट प्लीज सर? कुड यू रिपीट प्लीज मैम? जो भी है, चलिए। तो पोलाइटनेस हम समझ गए, ज्यादा मुश्किल नहीं है पोलाइटनेस का। अब हम देखते हैं एक कुड आपने देखा जो लंबे समय तक चला पास्ट के अंदर, जो आपकी काबिलियत क्षमता थी कर पाने की, कर सकने की। अब एक स्थिति होती है जब, जैसे नीलम जी कल आई नहीं क्लास में, तो मैंने इनसे पूछा नीलम जी यू couldn't come to the class yesterday? No sir, I could not come to the class yesterday because I was busy with puja. So I was busy with the puja event that took place at my place. Okay, so I would ask her, ये जो could है ये हमारा, हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ सिंपल पास्ट। ओके, सो चलिए, नीलम जी कुड यू डू योर होमवर्क? क्या है इस प्रश्न का मतलब? क्या मतलब हो सकता है इस प्रश्न का? नीलम जी कुड यू डू योर होमवर्क? यहां से बता दीजिए, कुड यू डू योर होमवर्क? एनीवन अनम्यूट करके बताइए। अपने होमवर्क किया था? आपने होमवर्क किया? क्या आपने होमवर्क किया? ठीक है, अब देखिए एग्जैक्टली यही है सही उत्तर जो हिंदी में बोला जाता है, पर क्योंकि फील वही आ रहा है, होमवर्क किया क्या नीलम जी? होमवर्क किया। लेकिन अब आप देखिए होता क्या है कि एक शब्द है जो आप मिस कर रहे हैं हिंदी में, कुड। तो इसका क्या आपने होमवर्क कर सकते हो? नहीं नहीं, वो तो बहुत, हाँ वेरी गुड दीपमाला जी। नीलम जी कल क्या आप होमवर्क कर सके? कल क्या अपना होमवर्क कर पाए? बट ऐसे कौन बोलता है हिंदी में बताइए? कोई नहीं बोलता। सब जो नीलम राठौड़ जी ने कहा वही सही था, जो नीलम जी ने कहा आपने अपना होमवर्क किया,
यही बोलते हैं, बट एक्चुअली अगर मुझे वो बोलना होता तो अब आप लोगों का जो ज्ञान का कोश है वो बढ़ चुका है, तो मैं वो प्रश्न रख सकता हूं, वो होता नीलम जी डिड यू डू योर होमवर्क, ये होता वो प्रश्न, ठीक है। नीलम जी डिड यू डू योर होमवर्क, तो आप कहते यस सर आई डिड माई होमवर्क, नो सर आई डिड नॉट डू माई होमवर्क। लेकिन मुझे पता था कि शायद ये व्यस्त हैं, शायद कोई और काम होगा, तो मैंने इनको एक संभावना दी कैन के साथ, जो पास में कुड बन गया। नीलम जी कुड यू डू योर होमवर्क, तो इसका सेंस है बिकॉज आई थॉट मे बी शी इज बिजी, शी हैज लॉट ऑफ थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, सो आई आस्क्ड कुड यू डू योर होमवर्क, सो शी रिस्पॉन्ड्स टू मी एंड शी सेज यस सर आई कुड डू माई होमवर्क, हाँ सर मैं अपना होमवर्क कर पाई, मैं अपना होमवर्क कर सकी। लेकिन ऐसे नहीं बोलते हिंदी में, तो आपको समझ में आना चाहिए कि फिर कुड कहाँ गया अगर बोलते नहीं है तो इसे ध्यान रखना है। अगर ऐसे बोलेंगे ना, नीलम जी अपना होमवर्क कर पाए आप, नीलम जी अपना होमवर्क कर सके, हाँ सर मैं अपना होमवर्क कर सकी, हाँ सर मैं अपना होमवर्क कर पाई, तब तो सही है कुड कुड, राइट। अन्यथा जो आप लोगों ने जवाब दिया कि इसका सर मतलब यही है ना, आपने होमवर्क किया क्या, तो ये है वो प्रश्न एक्चुअली। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर, समझ में आ गया आपको। सो सका और पाए अगर फील आएगा तो कुड में जाना है, और अगर नहीं तो फिर ये, वैसे लिबर्टी है आपके पास, कहीं पे कुछ भी बोल दीजिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट एज अ लैंग्वेज लर्नर एंड एज डूइंग इट इन एन एकेडमिक प्रोसेस यू शुड नो कि ये कुड कहाँ गया, ये कुड सका या पाए के अंदर जाता है। ओके लेट मी लुक एट टाइम, और वी स्टिल हैव फ्यू मिनट्स। सो ये इस प्रकार से हमें बोलना है सिंपल पास्ट में। सो ये कुड की तरह है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो कुड है ये लंबे समय तक नहीं चला है, क्योंकि पास्ट की एबिलिटी नहीं है कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ गया है येस्टरडे। आप कहोगे सर हमने येस्टरडे नहीं लगाया, तो भी समझ में आ गया कि कल की बात हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बात नहीं कह रहा हूं कि नीलम जी जब आप आई डोंट नो अमेरिका में थे तब क्या अपना होमवर्क कर पाते थे। अगर ये मेरा फील होता तो भी यही प्रश्न आता। कैसे? मैं इसका कॉन्टेक्स्ट देता आपको, मैं कहता नीलम जी व्हेन यू वर इन अमेरिका कुड यू डू योर होमवर्क। तब मैंने उनको सेटल किया पहले अमेरिका में बातों में, फिर उसको लंबाई दी। नीलम जी व्हेन यू वर इन अमेरिका कुड यू डू योर होमवर्क रेगुलरली, तब क्या आप अपना काम रेगुलरली कर पाते थे, कर सकते थे। क्लियर है सभी को? तो ये जो कुड है ये थोड़ा ट्रबलसम शब्द है, ये बहुत आपको इरिटेट करेगा कि कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या बोलना है। सो यू हैव टू इंश्योर कि अगर पास्ट की बात कर रहे हैं एज एबिलिटी कि कर पाते थे क्या आप अपना होमवर्क अमेरिका में थे, क्योंकि इतना काम था, इतना ये वो, तो उस चक्कर में यू कुडंट डू इट। सो यस सर व्हेन आई वाज इन अमेरिका आई कुड डू माय होमवर्क रेगुलरली, मैं कर पाती थी, कर सकती थी। और कल होमवर्क किया क्या, देखिए मैंने भी हिंदी में ही बोला, क्योंकि मेरे को बोलना क्या था, क्या कल आप होमवर्क कर पाए, क्या आप कल अपना होमवर्क कर सके, ये मुझे कहना था। तो मैं इनसे प्रश्न पूछूंगा नीलम जी कुड यू डू योर होमवर्क यस्टरडे, तो इन्होंने कहा यस सर आई कुड डू माय होमवर्क यस्टरडे, और आई एम सॉरी सर आई कुडंट डू माय होमवर्क यस्टरडे। तो वो कल की बात है, मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाई, मैं अपना होमवर्क नहीं कर सकी। यहां तक बताइए कोई डाउट है किसी को, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप कुड का ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा ट्रबलसम होगा। एक और देखते हैं फटाफट से कुड। whenever you wish to leave, धीरज you could leave, right? Not a problem. Whenever you wish to leave, you could leave. अब देखिए मैंने could बोला कि ये could जो है ये मैं उनको पॉसिबिलिटी दे रहा हूँ कि आप जा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा you can leave। उसमें और सॉफ्टनेस डाल के, उसमें और पोलाइटनेस डाल के हम could यूज करते हैं, आप जा सकते हैं, you could leave, राइट। सो could आपको काम में लेना होता है। ऑलराइट, एक और could हम देखते हैं जो हमने देखा था, if I spoke English fluently, I could travel to England. Okay. अगर आपको याद है शुरुआत वाली क्लासेस में हमने आपको सिखाया था कि अगर हम यहाँ पे सिंपल पास्ट काम में लेते हैं तो उधर वाले हिस्से में वुड के साथ क्रिया को लगाते हैं, याद है आप सभी को? ठीक है, वो आपको याद है। और हमने आपको ये भी बताया था कि वो स्थिति होती है हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी, हो सकती है, अभी भी संभव है, राइट। उसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। इफ आई स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, FLUENTLY, I would go to, I don't know, I would go to England। चलिए इंग्लैंड ही चलते हैं अभी तो, चलिए। इफ आई स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली आई वुड गो टू इंग्लैंड। किसने पूछा कि अगर आप बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते मान लीजिए तो आप कहाँ जाते?
हिंदी में देखिए रिग्रेट जैसा होता है कि अगर आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते तो कहाँ जाते, तो आप उत्तर देंगे अगर मैं फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती तो मैं इंग्लैंड जाती। हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं। अब इसको आप ये मत सोचिएगा कि सर अब क्या जाना असंभव है क्या, अभी भी जाना संभव है, पर हिंदी का माध्यम ही है। दीपाली जी समझ में आता है आपको? नीलम जी, हिंदी में इसको बोलने का तरीका ये होता है कि आपको लगता है कि अब नहीं जा सकते इंग्लैंड, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हिंदी में और कोई तरीका नहीं। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं किसी और तरीके से बोलूंगा तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं उसको अवॉइड करूंगा। अंग्रेजी में बोलेंगे इफ आई स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली आई वुड गो टू इंग्लैंड। तो हमने क्या किया इसमें, हमने पहले वाले हिस्से में लगाया सिंपल पास्ट जो आपको बहुत अच्छे से आता है मैं आशा करता हूं, और दूसरे के अंदर हमने वुड के साथ हमारी क्रिया का मुख्य रूप लगाया। ये बात समझ में आती है आप सभी को? ये हमने सीख ली है बात। तो इस बात से अब हम इस बात पे चलेंगे और इसको रिलेट करेंगे कि कैसे हो सकता है। दुनिया के सभी क्रियाओं को आप वुड के साथ लगा सकते हैं। वुड के साथ सारी क्रियाएं आ सकती हैं दुनिया की, सिवाय एक क्रिया के, और वो क्रिया है कैन। कैन और वुड साथ में कभी नहीं जाते। मतलब आप कहोगे ना कि आई वुड वॉन्ट हो सकता है, आई वुड ईट, आई वुड डांस, आई वुड स्पीक, ऑल द वर्ब्स ऑफ द वर्ल्ड कैन बी पुट टुगेदर विद वुड, बट यू कैन नॉट से आई वुड कैन, दैट डजंट मेक सेंस। तो वुड और कैन क्या बन जाते हैं मिलके? वुड और कैन मिलके बन जाते हैं कुड। वुड और कैन मिलके बन जाते हैं कुड, राइट? सो ये दोनों का जो सेंस है वो कुड का सेंस है। तो आपको वुड का फील अगर कैन के साथ देना है तो आपको कुड बोलना पड़ेगा इस वाले फॉर्म में, ठीक है? तो कुड डालते ही आपकी पॉसिबिलिटी, संभावना पे हम चर्चा करेंगे। कैसे नीलम जी? अगर मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलती तो मैं इंग्लैंड जाती, यहां पे होता जाती वुड गो, और यहां पे होगा जा पाती, जा पाती, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि कहीं ना कहीं दीपाली जी मुझे पाना, कर पाना या कर सकने का फील डालना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं भी डालना चाहते, आपको लगता है सर बड़ा अटपटा सा बन रहा है, तो भी मत डालिए, लेकिन जस्ट टू लेट यू नो दैट दिस कुड इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड थ्रू द वर्ड इन हिंदी। अगर मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलती तो मैं इंग्लैंड जा पाती, दैट्स व्हाट यू विल हैव टू से। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है कि अब संभव ये नहीं है, ये अभी भी संभव है। इज दैट ओके एवरीवन? इस पे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। आपको कुछ पूछना है? एनीवन, एनी क्वेश्चंस? प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। तो यहाँ पे कुड काम में आता है, ये एक ही कुड है। ये वाला जो कुड है ये हमारी पॉसिबिलिटी दर्शाता है फ्यूचर की, और इसके साथ एक सिंपल पास्ट का हमें क्लॉज अड़ा के रखना होता है। ये वाला तो हम सीख चुके हैं, इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसका मैंने स्पेसिफिक केस लिया है कुड वाला, इसलिए मेरे को यहाँ पे कुड आपको दिखाना पड़ा था, जो हमारी इस पूरी लिस्ट में से चलता आ रहा है कि सबसे पहला तरीका होता है हमारी पास्ट की एबिलिटी बताने का, फिर पोलाइटनेस का, और फिर सिंपल पास्ट के अंदर कोई बात कहने का, और चौथी स्थिति थी हमारी, मैं इस पे नंबरिंग डाल देता हूँ आपके लिए इजी रहेगा, और चौथी स्थिति थी हमारी जब हम कहते हैं कि हम एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल या फिर इमेजिनरी सिचुएशन, क्योंकि हुआ तो नहीं है अभी, अगर मैं अंग्रेजी बोलूं धारा प्रवाह तो, और ये है पास्ट। और कैसा पास्ट है? सिंपल पास्ट टेंस। और 2 नंबर पे हमने पोलाइटनेस कर लिया, ठीक है? और 1 नंबर पे हमने कर लिया एबिलिटी वाला, या 1 नंबर। चलिए, what happened? It's not moving smoothly. All right, I'll do this way. Okay. अब आते हैं हम 5वें कुड पे, जो थोड़ा सा आपको तकलीफ देगा, बट आई एम श्योर बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। यही बात एक रिग्रेट के रूप में लेते हैं हम। रिग्रेट आप समझते हैं, पछतावा, रिग्रेट, पछतावा। थोड़ा सा बोल के बताइए कोई ऐसा वाक्य हिंदी में जो पछतावा दिखाता हो, कोई चीज कर न कर पाने का। कोई वाक्य बोल सकते हैं दीपाला जी, नीलम जी? एनी सेंटेंस? गुरप्रीत जी, पास्ट में जो नहीं हो पाया और अब पछतावे के रूप में इस वाक्य को हम बोल रहे हैं, और उसमें न कर पाने का फील है। दीपाला जी? मुझे पछतावा है, मैं बीएड नहीं कर पाई। ओके, मुझे पछतावा है कि मैं बीएड नहीं कर पाई। अब इस वाक्य को हम थोड़ा सा घुमा के बोलते हैं, आई कुड हैव फिनिश्ड माय, अगर मैं टाइमली या कोई भी चीज, आई डोंट नो, आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल अबाउट इट, जस्ट अ सेंटेंस वी आर मेकिंग। सो अगर मुझे टाइमली एडमिशंस का पता चल जाता, अगर मुझे टाइमली एडमिशंस का पता चल जाता तो मैं अपनी बीएड कर सकती थी, राइट?
अब कर सकती थी वाले पे हम ध्यान देंगे। अगर मुझे समय पे बीएड की सूचना की जानकारी मिल जाती, को छोड़ते हैं अभी, मैं कर सकती थी, राइट। तो हम उस पर काम करेंगे। बहुत सिंपल सा इसका कंस्ट्रक्शन, आई could have, you could have, he could have, she could have, it could have, we could have, और अंत में it has to move, और अंत में है they could have के साथ कर सकता था, कर सकती थी, कर सकते थे, कोई भी चीज, राइट। अब ये जो है, ये वो वाला कर पाना नहीं है नीलम जी, जो आपने पहले कहा था कि जब मैं छोटी थी तो मैं 6 घंटे लगातार पढ़ाई कर सकती थी, क्योंकि वो तो करते ही थे ना, वो तो करते ही थे। इसमें क्या है कि मैं कर नहीं पाई लेकिन मैं कर सकती थी, वो वाला सेंस है, रिग्रेट है। तो इसमें क्या करना है हमारे को, हमें उस व्यक्ति को ढूंढना है जिसकी बात हम कर रहे हैं, कुड लगाना है, हैव लगाना है, और क्रिया का तीसरा फॉर्म लगाना है। आई एम श्योर तीसरा फॉर्म आपको पता होगा, फटाफट पूछता हूं मैं, बताइए, अनम्यूट करके कोई भी रैंडमली बता सकता है। मैं जा सकती थी, टू गो का थर्ड फॉर्म गॉन, वेरी गुड, GONE यहां लिख देता हूं मैं, गॉन। और ओके, तुम बोल सकते थे, टू स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, स्पोकन, राइट। टू बाय का थर्ड फॉर्म, टू बाय खरीदना, बॉट, BOUGHT, बॉट, ओके। टू सी का थर्ड फॉर्म सीन, SEEN, सीन, ओके। टू ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक, ओके। दो और देख लेते हैं फटाफट से। समझने का थर्ड फॉर्म, टू अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। और टू रीड का थर्ड फॉर्म, पढ़ने का, टू रीड का थर्ड फॉर्म रेड, रेड ध्वनि है और स्पेलिंग है READ, ये आपको पता होगा, राइट। रेड पढ़ते हैं इसको। अपनी वापस उस PDF पे जाइएगा, उसके सारे उच्चारण को, उसके मीनिंग्स को देखिएगा। आई विल बी वेरी क्विक। सो ये जो आखिरी है, आई कुड हैव गॉन, मैं जा सकता था, यू कुड हैव स्पोकन, तुम बोल सकते थे, क्यों नहीं बोले तुम। ही कुड हैव बॉट, अरे वो खरीद सकता था, उसके पास पैसे भी थे और वहां पे उस टाइम मिल भी रही थी वो चीज, ही कुड हैव बॉट इट। शी कुड हैव सीन, अरे वो देख सकती थी, व्हाई डिडंट शी सी, देख सकती थी वो। इट कुड हैव ड्रंक, यहाँ पे इट, यहाँ पे क्या निर्जीव चीज है लेकिन पीने की क्रिया आ रही है, तो निर्जीव चीज कैसे पिएगी, तो यहाँ पे हम पशु ले लेते हैं कोई, है ना, एनिमल ले लेते हैं, तो एनिमल पी सकता है कोई पानी वानी या कोई भी चीज, तो इट कुड हैव ड्रंक। मान लीजिए कोई ऐसा पानी था जिसमें प्रॉब्लम थी या उसमें आई डोंट नो कोई गड़बड़ थी और कोई डॉग है वो पी जाता, तो इट कुड हैव ड्रंक द वाटर, इट कुड हैव ड्रंक दैट, यू नो, that what should I say, poisonous water or water which was not potable, non-potable water, non-potable is जो पी नहीं सकते, तो वो पी जाता तो वो पशु नहीं बचता फिर। We could have understood, अरे हम समझ सकते थे, we could have understood, थोड़ा सा और मेहनत करते ना तो we could have understood। और अंत में they could have read, अरे वो पढ़ सकते थे, ऐसे ही चले गए, थोड़ा पढ़ ही लेते वो, they could have read। इनका सेंस समझ में आता है सभी को, राइट। तो ये है कि मतलब वो चीज नहीं हो पाई, पछतावा है। तो किसी का अगर वाक्य, जैसे गुरप्रीत जी ने बताया कि आई कुड हैव फिनिश्ड माय बीएड, आई कुड हैव फिनिश्ड माय बीएड, लेकिन ये कभी हम कभी भी इसको हवा में नहीं बोलेंगे, इसके साथ हमेशा एक बात चिपक के आएगी। क्योंकि अगर कोई ये बोलता है ना कि मैं अपनी बीएड कर लेती, मैं अपनी बीएड कर सकती थी, कब, कोई बात के साथ, तो हमेशा ये दो क्लॉजेस में चलता है। आपको मैं उसमें ज्यादा नहीं उतारूंगा बट फिर भी थोड़ा सा बताता हूँ। आप मुझे बताइए, क्या हमने पास्ट परफेक्ट थोड़ी पढ़ा है आपको, शायद पास्ट परफेक्ट नहीं पढ़ा है, हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है आपको, है ना। पास्ट परफेक्ट नहीं पढ़ा है आपको, नहीं पढ़ा है, मुझे जहां तक ध्यान नहीं पढ़ा है। तो इसमें होता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट के साथ हम लगाते हैं कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। मैं एक फटाफट से उदाहरण देता हूं, हालांकि आप कहोगे सर आप पास्ट परफेक्ट पढ़ाओगे हमारे को तो 1 मिनट लगेगा,
प्रेजेंट परफेक्ट याद है आपको? प्रेजेंट परफेक्ट कैसे होता है दीपमाला जी? हैव और हैज के साथ थर्ड फॉर्म, आई हैव ईटन, शी हैज अंडरस्टूड, याद है आपको एवरीवन? याद है। अब ये तो और भी आसान है, पास्ट परफेक्ट क्या होता है? और पीछे जाता है समय में, और इसका सेंस आता है मैं गया था, हमने देखा था, उन्होंने बोला था, ये था लगता है, राइट? तो कैसे होगा? इसमें आप हैड लगाते हो और सब्जेक्ट के साथ SUBJECT, सब्जेक्ट के साथ हैड लगाते हो प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हो, और इसका सेंस क्या बनता है नीलम जी? मैंने खाना खाया था, चलिए मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खाया था। ओके, मैंने खाना खाया था, ये अभी सिर्फ इसको आइसोलेशन में बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, मैंने खाना खाया था, इफ आई हैड ईटन, हाँ ओके। तो इस तरीके का सेंस देता है। तो कैसे बोल सकते हैं मैंने खाना खाया था? एनीवन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सब्जेक्ट आई हैड, ओके डन या टेकन, आई हैड टेकन माय डिनर, आई हैड टेकन, आई हैड। आपको याद आ रहा है सभी को? हम तीन, इसमें हमारे पास थर्ड फॉर्म्स खुल सकते हैं नीलम जी। आई हैड तो फिक्स्ड है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना क्योंकि ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन ही ऐसा है। इसके साथ थर्ड फॉर्म चलती है, तो आई हैड टेकन, मैंने अपना डिनर लिया था, डिनर लगा देते हैं आगे। आई हैड हैड माई डिनर, आपको याद है आई हैड, क्योंकि मुझे ध्यान है एक बार ये वाला प्रश्न रखा था धीर जी ने कि सर आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट में हैव और हैड आ रहा, तो हमने कहा था कि देखिए पहला हैव तो उस कंस्ट्रक्शन का पार्ट है और दूसरा हैड वो थर्ड फॉर्म है। तो इसी प्रकार से आई हैड का मतलब भी मैंने अपना डिनर लिया था, राइट? नहीं, पिछले महीने तो मैंने अपना डिनर घर पे ही लिया था, नहीं पिछले हफ्ते, क्योंकि बहुत पुरानी बात होती है ना, इसलिए हैड लगाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आई हैड टेकन, आई हैड ईटन माय डिनर। ये तो हुआ सिर्फ पास्ट परफेक्ट को आइसोलेशन में पढ़ा हमने। आइसोलेशन मतलब सिर्फ इतने से रूप में पढ़ा, इसको इतने से रूप में पढ़ा, इतने से रूप। हाँ बताइए। My sentence is I could have done PhD in history if I had no responsibility of it. एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है। अब आप इस वाक्य पे ही पहुंच गए। मैं पहले आपको पास्ट परफेक्ट तक ला रहा था पर आप लोग समझ चुके हैं। अब हम वाक्यों पे चलते हैं। तो अब ध्यान रखिएगा, अब हम किस कंस्ट्रक्शन पे चल रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज करता हूं ताकि आप देख पाए। सो हम नीलम जी का सेंटेंस उठाते हैं जो इन्होंने कहा। सो आई जस्ट ट्राई टू हाईलाइट दिस पोर्शन नाउ अगेन। I'll do it in a different color. Let me highlight it. I don't know if yeah. I'll have to increase the size. Okay. इस वाले के ऊपर अब हम I'm sorry. What am I doing? Yeah. So we'll go on to this thing now. इसको पकड़ रहे हैं ना, इस वाले पे अब चलते हैं। ये तो हमने सीख लिया कि वो कैसे बनता है। मैंने खाया था, हम गए थे, हमने देखा था। दीपमाला जी समझ में आ रहा है? गुरप्रीत जी आपको? हमने बोला था, हमने देख लिया था, हम दिल्ली गए थे, हमने ताजमहल देखा था, हमने लाल किला देखा था, हम यहाँ गए थे, हम उधर गए थे, राइट? था, थे, था, थी, थे, ये इस प्रकार का टेंस होता है पास्ट परफेक्ट। अब यहां से सीखने के बाद हम इसको इस वाले फॉर्मुलेशन में डालेंगे। तो पहले उठाते हैं हम नीलम जी का वाक्य। नीलम जी ने इसमें क्या किया, इन्होंने ये वाला हिस्सा पहले उठा के रखा अपने वाक्य में और ये वाला हिस्सा पीछे रख दिया। तो ध्यान रखिएगा, इनके वाक्य में वापस से सुनते हैं इनसे, इनके वाक्य में क्या क्या सुनाई देना चाहिए एवरीवन। इनके वाक्य में कुड हैव सुनाई देना चाहिए, उसके साथ थर्ड फॉर्म सुनाई देना चाहिए एक हिस्से में, और एक हिस्से में इनके वाक्य में हैड, इफ के साथ हैड दिखाई या सुनाई देना चाहिए और साथ में एक थर्ड फॉर्म लगा होना चाहिए, तब वाक्य पूरा सही होगा। तो देख लेते हैं, बताइए आप नीलम जी। Yeah, you'll have to unmute yourself. Yeah. If I had no responsibility of it. If I had not. Okay, if I had not. Yeah. No responsibility. Responsibility. Oh la la. Responsibilities. I hope I have made responsibilities. Responsibility. Spelling देख लीजिएगा, मैं लिखते समय I have to write responsibility. Yeah.
responsibilities of my kids. Yeah, I could have done PhD in history. I could have done PhD in history. एक बार फटाफट से सब लोग इस वाक्य को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और मुझे बताइए कि आप लोग ओके हैं इस वाक्य से, आपको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है? अच्छा, आपको लगता है हैड दो बार क्यों आया ऐसा? मतलब पर्टिकुलर एक सेंटेंस में वो चीज में कंफ्यूजन है। मतलब आपको लगता है कि 2 बार हैड नहीं आना चाहिए? मुझे कंफ्यूजन है सर, अच्छा, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम. नो सर, नॉट सर, नो। नोट नहीं आएगा सर, नो ओनली। अच्छा, इफ आई हैड या ओके, आप अच्छा आप कह रहे हैं कि नो लगा दिया तो फिर नॉट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ओके परफेक्ट, दैट्स करेक्ट. सो पहले हम गुरप्रीत जी के आंसर की तरफ जाते हैं. उनका प्रश्न है कि 2 बार हैड क्यों आया. तो गुरप्रीत जी आप ध्यान दीजिए कि जब कभी भी इस हिस्से में, ये वाला जो हिस्सा है जो इफ के साथ चिपक के आता है, हमारे पास्ट रिग्रेट में, हमारे पछतावों में, हम जो कर पाते थे, कर सकते थे पर कर नहीं पाए, उसमें इफ के साथ जो हिस्सा आता है उसमें हैड चिपक के आता है, वो मैंडेटरी है. तो ये वाला हैड आप अलग नहीं कर सकते हैं, ये वाला हैड ये तो चलेगा ही चलेगा. अब प्रश्न उठता है ये हैड कहां से आया? ये हैड है हमारी थर्ड फॉर्म टू हैव की. ठीक है गुरप्रीत जी, ये थर्ड फॉर्म है टू हैव की, सर तो इससे हैड लगा, तो इससे आपको लगा कि 2 बार हैड क्यों? ये टू हैव की थर्ड फॉर्म है कि अगर मेरे पास जिम्मेदारियां नहीं होती बच्चों की तो मैं अपनी पीएचडी कर लेती या फिर कर सकती थी. देखिए हिंदी में क्या बोलते, मैं कर लेती, लेकिन कर लेती नहीं है एक्चुअली, ये है कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं करी, जो भी रीजंस थे, राइट. सो इफ आई हैड had no responsibilities of my kids, I could have done my PhD in history. I could have done PhD in history. Clear है दीपाला जी, समझ में आ रहा है आपको? ओके, इसका एक और तरीका अगर not होता तो if I hadn't had, अगर मेरे पास नहीं होती, अगर मेरे पास I don't know, if I hadn't had lot of work pressure, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा काम का दबाव नहीं होता ना उस टाइम पे, तो मैं क्या कर सकता था, मैं आई डोंट नो, मैं अपना कोई स्टार्टअप कर सकता था, मैं अपना कोई काम कर सकता था पास्ट के अंदर. सो इफ आई हैडंट हैड लॉट ऑफ वर्क प्रेशर, और बता देते हैं कब, एट दैट टाइम आई कुड हैव स्टार्टेड my own business. बताइए इसका क्या मतलब होगा दीपमाला जी, इसको पढ़ दीजिए अंग्रेजी में, हिंदी में मीनिंग बताइए. If I hadn't had lot of work pressure at the time, I could have started my own business. अगर मेरे पास उस समय बहुत सारा काम का प्रेशर नहीं होता तो मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता था. वेरी गुड, क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है आप सभी को? अब इसमें आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? आपके पास ये ऑप्शंस हैं कि आप क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं. मैं इसको बदल सकते कोई और थर्ड फॉर्म लगा सकता हूं, मैं नॉट की जगह पॉजिटिव कर सकता हूं, ये नेगेटिव था तो मैं पॉजिटिव कर सकता हूं, और मैं इसको चेंज कर सकता हूं, तो मेरे, और मैं इस व्यक्ति को बदल सकता हूं, व्यक्ति को, तो इसको आई को. सो एक फटाफट से ट्राई करते हैं. आप बताइए, देन वील क्विकली लिसन, और मे बी वील डू, लेट्स सी हाउ मच टाइम वील हैव लेटर ऑन. द क्वेश्चन इज, अगर तुमने मुझे बताया नहीं होता, तो मैं अपनी ट्रेन मिस कर सकती थी. अगर तुमने मुझे बताया नहीं होता कि भाई तुम लेट हो रही हो, मैं अपनी ट्रेन मिस कर सकती थी. मतलब मैं सिर्फ इसका कॉन्टेक्स्ट दे सकता हूँ, इसका हिंदी का पूरा वाक्य इस प्रकार से होगा, अगर तुमने मुझे बताया नहीं होता, अगर तुमने मुझे फोन नहीं किया होता, मान लीजिए फोन कर लेते हैं, उसने फोन कर दिया एकदम और याद है अरे मेरी तो ट्रेन है,
तो मैं भागा, या वो जो गर्ल थी वो भागी अपनी ट्रेन पकड़ने। सो अगर तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया होता तो मैं अपनी ट्रेन मिस कर सकती थी, मेरी ट्रेन मिस हो जाती। हिंदी में बोलते हैं मेरी ट्रेन मिस हो जाती। एनी गेसेस? If you hadn't told me, If you hadn't informed me, told me, called me, told me, क्या हो जाता? I could have missed my train. Very good. I could have missed my train. Perfect, Deepmala ji. Missed my train. फिर ट्रेन आपकी छूटी नहीं छूटी दीपमाला जी? नहीं छूटी ना आपकी ट्रेन? नहीं, आपको समय पे फोन आ गया भाई आपकी ट्रेन का समय हो चुका है, पहुंचिए। सो इफ यू हैडंट इन्फॉर्म्ड मी, ओके, इफ यू हैड नॉट इन्फॉर्म्ड मी, I could have missed my train, but thank you to have informed me. धन्यवाद आपका कि आपने मुझे सूचना दी, सूचित किया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नीलम जी फ्रॉम जलगांव, नीलम राठौर जी, दीपाली जी, क्लियर है आपको वाले फॉर्मेशंस? राइट? ये एक तरह का रिग्रेट होता है। देखिए ये पछतावा ही है, मतलब अब कुछ नहीं हो सकता, राइट? सो इस ऐसी कंडीशंस के अंदर आई मीन पछतावा इसलिए लार्जली इसमें बहुत रिग्रेट्स होते हैं, बट आपको सर इसमें तो कहाँ रिग्रेट है, ट्रेन पकड़ तो ली, अब किस बात का पछतावा है? सो दैट्स ट्रू, इट्स नॉट अ पछतावा इन दिस केस, बट देन लार्जली दीज आर थिंग्स दैट कैन नॉट बी अनडन, या इसको वापस से रिपीट नहीं कर सकता, मतलब पास में नहीं जा सकते, ये हो गया। सो उसने अच्छा है कि इन्फॉर्म कर दिया। या इसमें पछतावा क्या हो जाता है, इसका उल्टा कौन कर सकता है? आप ट्राई करेंगे नीलम राठौर जी? इसका उल्टा कर देते हैं, इसका आप उल्टा करके बताइए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अगर तुम मुझे समय पे सूचना दे देते ना तो मैं अपनी ट्रेन पकड़ लेती, आप ये कहना चाह रहे हैं? मतलब फ्रेश वाक्य बता रहा हूं मैं आपको, अगर तुम मुझे समय पे सूचना दे देते तो मैं अपनी ट्रेन पकड़ लेती, पर ना तुमने सूचना दी ना मैं ट्रेन पकड़ पाई। If you had, हाँ, if you had, if you had informed me, हाँ, if you had informed me on time, on time, I could have caught my train. very good, I could have caught my train, I could have caught my train, मैं अपनी ट्रेन पकड़ लेती, ले लेती, I could have caught my train. Perfect, clear है सभी को? समझ में आ रहा है? नीलम जी फ्रॉम जलगांव, इज इट ओके? समझ में आ रहा है आपको? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो कुड है वो कुड हैव के सेंस में जाता है, ये थोड़ा सा ट्रबलसम होता है कई बार, और बाकी तो मैंने आपको बता दिया, तो आपको इस प्रकार से करना है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आज हम डिबेट पोस्टपोन करके कल रखेंगे, बट आज हम उस डिबेट का कंटेंट है फटाफट से पढ़ लेते हैं ताकि आपके पास अच्छा सा कंटेंट हो जो आप कल आप उसके ऊपर चर्चा करें। और कल पूरा टाइम we'll just talk in English on the topic why hobbies are important for us. देखेंगे क्या हॉबीज हमेशा अच्छी अच्छी होती हैं या हॉबीज होने से कोई नुकसान भी होते हैं? लगता है कोई नुकसान है हॉबीज के? Do you think there are some disadvantages as well of hobbies? We'll see. देखते हैं। कुछ कहना है आपको दीपमाला जी? लगता है आपको कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं हॉबीज के? नहीं? Yes, sir. क्या है बताइए? what are the disadvantages? वो ज्यादा जरूरी है बिकॉज फायदे तो सबको पता है। What are the disadvantages? दीपमाला जी, what do you think? According to me, when I started doing my hobbies, Yeah. I forget everything, my kids. Oh God. You got totally involved into it. That okay. So that's a strange point because at times people think that when you are into your hobbies, you distract yourself for a while so that you can reboot yourself, you can restart, and you can get a break. But if that disturbs your personal life, your professional life, then that's problematic. So we have to find a balance. Anyway, that's a good point. We'll talk about that tomorrow. एक बार फटाफट से हम ये पढ़ लेते हैं. I'll request Neelam ji to read the initial these sentences for us. यहाँ तक आप पढ़ दीजिए, इनके सभी के नाम, ये सारी हमारी हॉबीज हैं या लेजर एक्टिविटीज हैं। नीलम जी पढ़ दीजिए आप। नीलम राठौर जी, विजिबल है आपको नीलम जी? आई थिंक हाँ, अगर आपको दिख रहा है तो आप ये पढ़ दीजिए 1 से 9 तक।
reading, या रीडिंग, writing, राइट, painting, drawing, playing sports, listening to music, playing musical instruments, dancing, gardening. परफेक्ट। चलिए दीपमाला जी आगे वाले आप पढ़ दीजिए। अगर मीनिंग नहीं क्लियर है किसी का तो पूछेगा, अन्यथा आई थिंक बहुत जेनरिक से हैं ये, बताइए। cooking, traveling, photography, cycling, hiking, swimming, fishing, knitting, sewing, yoga, ओके इसका एक बार प्रोनाउंसिएशन और इसका देख लेते हैं। इसका होता है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी पढ़िए एक बार साथ में, फोटोग्राफी। photography, हाँ फोटो नहीं, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। photography, परफेक्ट, राइट, ना कि फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। और एक और शब्द है यहाँ पे, सिलाई करने को बोलते हैं सोइंग, सोइंग, राइट। इसको स्यूइंग नहीं पढ़ना, सोइंग पढ़ना है। चलिए आपने योगा तक पढ़ा, 2 मैं पढ़ देता हूँ, फिर आगे हम नीलम जी को बोलेंगे फ्रॉम जलगांव। मेडिटेशन एंड वाचिंग मूवीज, आगे हम बढ़ते हैं। there was a blank, then we move to the next one. Yeah, we have few more. चलिए आप नीलम जी from Jalgaon, if you're there, could you just unmute and tell us? ये पढ़ दीजिए। I think she's there. Are you there, नीलम जी? पढ़ दीजिए वाले। हाँ पढ़िए। Watching TV shows, playing video games, collecting stamps, collecting coins, playing chess, playing cards, bird watching, woodworking, learning a new language. Perfect. So many options you have in your life to move ahead and to pick up a hobby for yourself, right? So I think learning English is perhaps your hobby and your passion. I can feel that. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल आप जब इस पे चर्चा करेंगे तो आप इन हॉबीज की बात कर सकते हैं। अब इसके फायदे क्या होते हैं देखते हैं फटाफट से। आपसे चालू करते हैं हम, नीलम जी फ्रॉम जलगांव। Reduces stress, boosts creativity, वापस पढ़िए। enhances, boost creativity, हाँ बूस्ट की जगह आपको पढ़ना है बूस्ट, बूस्ट। हाँ थोड़ा सा की ध्वनि आएगी। enhances problem solving skill, स्किल्स, improves, आप क्या आप एस को थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, एस को पढ़ना है आपको, राइट। enhances problem solving skills, आगे, improves mental health, राइट, encourages social interaction, राइट, increases patience, provides relaxation, राइट, develops time management skills. perfect, right? So increases patience, provides relaxation, develops time management skills. Perfect. Okay, एक मैं पढ़ देता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। Enhances focus and concentration. Enhances focus and concentration. आपका concentration बढ़ता है इससे। Okay, आगे बढ़ते हैं। दीपाली जी आप पढ़ दीजिए। मैं थोड़ा सा आपके लिए zoom करता हूँ ये। हाँ यहाँ से। Just या दीपाली जी आप पढ़िए। promotes lifelong learning, promotes lifelong learning, Right. builds self-confidence, provides a sense of accomplishment, Right. helps in personal growth, Hmm. offers escape from routine, Right. offers escape from routine, improves physical health, is active, या यहाँ तक पढ़ दीजिए दीपाला जी 70 तक। strengthens hand-eye coordination, Right. expands knowledge. Perfect. Thank you दीपाला जी। आगे बढ़ते हैं। नीलम जी, नीलम राठौड़ जी आप पढ़ सकते हैं ये वाले 18 से लेके 23 तक। Yes, sir. पढ़िए। Encourages teamwork, offers personal fulfillment, develops organizational skill, helps maintain a work-life balance, improves communication skills, creates a sense of belonging, community hobbies. Perfect. Right. So encourages teamwork, group hobbies, offers personal fulfillment, develops organizational skills, helps maintain a work-life balance, improves communication skills, creates a sense of belonging, which is for community hobbies. Right. इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको आपको पढ़ना है, right? चलिए
मैं 2 पढ़ देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। बूस्ट्स मेमोरी, ये आपके दिमाग को बहुत शार्प करता है, बूस्ट्स मेमोरी। एंड अंत में बिल्ड्स परसिवियरेंस, परसिवियरेंस मतलब आपका जो धैर्य है और दृढ़ता है, मतलब आप गिव अप नहीं करते उसको बढ़ाता है ये, बिकॉज आप कोई एक्टिविटी करते हो तो आप गिव अप नहीं करते उसके अंदर, इस वजह से। और फटाफट से देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स, ये मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए फटाफट से। इट हेल्प्स इन रिलैक्सेशन आफ्टर वर्क, इट प्रोवाइड्स मेंटल स्टिमुलेशन, इट हेल्प्स एक्सप्रेस इमोशंस। आप जब गेम खेलते हैं तो गुस्सा करते हैं, खुश होते हैं, नाराज होते हैं, तो आपको आपके इमोशंस को भी रिलीज करने में हेल्प करता है। कई बार हम ये चीजें कर नहीं पाते नॉर्मल लाइफ के अंदर, सो वी कैन मैनिफेस्ट एंड वी कैन रिलीज आवर इमोशंस थ्रू स्पोर्ट्स और अदर हॉबीज। कैन लीड टू न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल अंग्रेजी सीखते सीखते आप अंग्रेजी के टीचर बन जाएंगे, आप कोई कंपनी में काम करने लग जाएंगे, तो वो एक नया करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए खोल देता है। और अंत में बिल्ड्स रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब है कि आप सहनशील हो जाते हैं, आप एकदम मजबूत हो जाते हैं, तो वो भी हमारा एक एफर्ट है स्पोर्ट्स के अंदर या हॉबीज के अंदर जो हमारा ये कंपोनेंट डेवलप करता है। अब एंड में हम देख लेते हैं फटाफट से, जो दीपमाला जी ने कहा कि बिल्कुल इसमें दिक्कतें भी होती हैं, तो दीपमाला जी आप बता दीजिए शुरुआत की 7 दिक्कतें क्या हो सकती हैं। Can be time consuming, might become expensive, can cause distraction from responsibilities, may lead to stress if overdone. Some hobbies require significant physical effort, can lead to isolation. Solo hobbies may cause frustration if progress is slow. परफेक्ट, थैंक यू दीपमाला जी। तो हमने देखा कि ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है, हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्ट्रेस हो सकता है कि हमें करना है करना है करना है, उसमें स्ट्रेस आ सकता है। कई बार फिजिकली भी हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है तो हम थक जाते हैं, हम दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि दीज आर एक्टिविटीज़ विच आर सोलो एक्टिविटीज़, इससे हम आइसोलेशन एकदम अकेलेपन में भी जा सकते हैं और फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है। कैन बिकम एडिक्टिव, हमें इसकी लत लग सकती है। और कैन टेक अप फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और कई बार हमारा पैसा भी इसमें सारा लग जाता है और हम पैसे से भी हाथ धो बैठते हैं कई बार। और अंत में कैन बी मोनोटोनस इफ नॉट वेरीड, और ये घिसी पिटी हो जाती है एक समय के बाद, अगर हमने इसमें वेरिएशन नहीं डाले तो उबाऊ हो जाती है, कोई मजा ही नहीं आ रहा इसके अंदर, तो हमें इंश्योर करना है कि हम इसके अंदर वैरायटी डालें। चलिए, so these were my points. Any questions from your side? Neelam ji, Deepmala ji, anything you'd like to ask? Clear hai? Right? So tomorrow we'll catch up for the last time, and tomorrow we will be working on everything that we have seen this far, and tomorrow we are going to work ahead. We are going to work on this topic, and the topic, as you know, is going to be why are hobbies important in our lives. राइट, सो इस पर हम चर्चा करेंगे कि हॉबीज क्यों जरूरी हैं। आप बताइएगा कि हॉबीज क्यों जरूरी हैं, उसके साथ में आपकी क्या हॉबीज हैं और आप अपनी हॉबीज को किस लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं या नहीं, या इज इट जस्ट समथिंग दैट यू डू फॉर रिक्रिएशन, उस पर हम चर्चा करेंगे। राइट, सो विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर टुडे सेशन। आई विश यू अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन।